یہ لیسن نمبر 3 اردو کا سبق نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر جو ہے الف کو تمام حروف کے ساتھ جوڑ کر بتایا جا رہا تھا۔ یہ لیسن نمبر 3 کا پارٹ 3 ہے، تو جو لوگ پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں دیکھے ہیں، اس کے اندر ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہے، وہاں دیکھیں۔ الف کو تمام حروف کے ساتھ زبر زیر پیش کے ساتھ کیسے لکھا یا کیسے پڑھا جاتا وہ بتایا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ہے الف کو عین کے ساتھ زبر زیر پیش کے ساتھ میں لکھنے کا طریقہ۔ جب دیکھیے الف کو الف لکھیں گے اور الف پر زبر ڈالیں گے، پھر عین لکھیں گے، عین پر جزم ڈالیں گے، یہ ہے آ۔ الف کو عین کے ساتھ لکھیں گے زیر کے ساتھ میں، دیکھیں الف لکھے ہیں، پھر عین لکھیں گے، عین پر جزم ڈالیں گے، الف کو عین کے ساتھ لکھیں گے پیش کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، الف پر پیش ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد عین لکھیں گے، عین پر جزم ڈالیں گے، اب عین کو غین کے ساتھ لکھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں۔ یہ دیکھیے الف لکھیں گے، زبر ڈالیں گے، پھر غین لکھیں گے، غین پر جزم ڈالیں گے، الف کو غین کے ساتھ جوڑیں گے زیر کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، پھر غین لکھیں گے اور غین پر جزم ڈالیں گے، الف کے نیچے زیر، الف لکھیں گے، پھر پیش ڈالیں گے اور غین لکھیں گے، غین پر پیش ڈالیں گے اور غین پر جزم ڈالیں گے، الف پر پیش غین پر جزم، اس کے بعد الف کو فا کے ساتھ لکھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، الف پر زبر ڈالیں گے اور فا پر جزم ڈالیں گے، الف لکھیں گے، زیر ڈالیں گے، فا لکھیں گے، فا پر جزم ڈالیں گے، الف لکھیں گے، الف پر جو ہے پیش ڈالیں گے اور فا لکھیں گے، فا پر جزم ڈالیں گے، الف کو فا کے ساتھ جوڑے زبر زیر پیش کے ساتھ میں۔ اب الف کو قاف کے ساتھ جوڑیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، یہ دیکھیے الف لکھیں گے اور پھر قاف لکھیں گے اور قاف پر زبر جزم ڈالیں گے، الف لکھیں گے، الف کو قاف کے ساتھ جوڑیں گے زیر کے ساتھ میں، قاف لکھے ہیں، قاف پر جزم ڈالیں گے، الف کو قاف کے ساتھ جوڑیں گے پیش کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، پیش ڈالیں گے اور قاف لکھیں گے، قاف پر جزم ڈالیں گے، اب الف کو کاف کے ساتھ جوڑیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، دیکھیے الف لکھیں گے، زبر ڈالیں گے، پھر کاف لکھیں گے اور کاف پر جزم ڈالیں گے، الف لکھیں گے، زیر ڈالیں گے، پھر الف کے بازو کاف لکھیں گے اور کاف پر جزم ڈالیں گے، الف کو کاف کے ساتھ جوڑیں گے پیش کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، پیش ڈالیں گے، پھر کاف لکھیں گے الف کے بازو میں اور کاف پر جزم ڈالیں گے، اب الف کو گاف کے ساتھ جوڑیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، زبر ڈالیں گے، یہ دیکھیے گاف کو اس طرح لکھتے ہیں کاف کی طرح اور اوپر سے ایک، اسے گاف کہیں گے، گاف پر جزم ڈالیں گے، الف لکھیں گے، زیر ڈالیں گے اور گاف لکھیں گے، یہ دیکھیے گاف پر اوپر اس طرح آ گیا، الف لکھیں گے، الف کو گاف کے ساتھ جوڑیں گے پیش کے ساتھ میں، یہ دیکھیے گاف لکھیں گے، الف پر لکھیں، الف پر پیش اور بازو میں گاف لکھیں گے اور گاف پر جزم ڈالیں گے، یہ ہے الف کو گاف کے ساتھ جوڑے ہیں، اس کے بعد الف کو لام کے ساتھ جوڑیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، دیکھیے الف لکھے ہیں، زبر ڈالیں گے، پھر اس کے بازو میں لام لکھیں، لام پر جزم ڈالیں، اور الف لکھیں، الف کو لام کے ساتھ زیر کے ساتھ جوڑیں گے، الف لکھیں گے، زیر ڈالیں گے، پھر لام لکھیں گے، لام پر جزم ڈالیں گے، الف کو لام کے ساتھ جوڑیں گے پیش کے ساتھ میں، الف لکھیں گے، پیش ڈالیں گے، لام لکھیں گے، جزم ڈالیں گے، اب الف کو میم کے ساتھ جوڑیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، یہ دیکھیے الف لکھیں گے، الف پر زبر ڈالیں گے، پھر میم لکھیں گے، میم پر جزم ڈالیں گے، الف لکھیں گے، زیر ڈالیں گے، میم لکھیں گے، جزم ڈالیں گے، الف میم زبر الف میم زیر اس کے بعد الف کو میم کے ساتھ لکھیں گے پیش کے ساتھ میں، یہ دیکھیے الف لکھیں گے، پیش لکھیں گے، پھر میم لکھیں گے،
और मीम पर जज़म डालेंगे अब यहां देखिए अलिफ को अब नून के साथ लिखेंगे जबर जेर पेश के साथ में। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, जबर लिखेंगे और बाजू में नून लिखेंगे, अन, नून पर जज़म डालेंगे अन। अलिफ को नून के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में, अलिफ लिखेंगे, जेर लिखेंगे, फिर नून लिखेंगे, नून पर जज़म डालेंगे इन। उसके बाद अलिफ को नून के साथ जोड़ेंगे पेश के साथ में, अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर पेश लिखेंगे, नून लिखेंगे, नून पर जज़म डालेंगे अन, इन, उन। अब यहां पर किताबों के अंदर अलिफ को वाव के साथ लिखा हुआ किताबों में नहीं रहता है, क्योंकि औ का अलिफ को वाव के साथ जबर के साथ तो आता है, लेकिन अलिफ वाव के साथ जेर के साथ उर्दू लैंग्वेज में यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको लिख कर बताऊंगा। हाँ, ये देखिए अलिफ को वाव के साथ लिख रहा हूं। अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर जबर डालेंगे और वाव लिखेंगे, वाव पर जज़म डालेंगे औ तो थोड़े लफ्जों में उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन यू अलिफ से पहले, वाव से पहले अलिफ और वाव के अलिफ के नीचे जेर, ये उर्दू लैंग्वेज में यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी सिर्फ लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। यू अलिफ को वाव के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में, इसको यू बोलेंगे। हाँ, और में जो है इस तरह अलिफ लिख सकते हैं, वाव लिख सकते हैं, वाव के बाद रा आएगा, और में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन यू में कोई इसका कोई माना ही नहीं है और उर्दू लैंग्वेज में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लिखने का तरीका बताया हूं। इसी तरह अलिफ को वाव के साथ जोड़ेंगे पेश के साथ में, वाव लिखेंगे, वाव पर जज़म डालेंगे, ये हो गया ऊ ओ। और उर्दू में जो है मजहूल भी पढ़ सकते हैं, आओ भी पढ़ सकते हैं, औ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मजहूल में इस्तेमाल होता है। मजहूल भी जैसा बाप है और बेटा है, तो बा मारूफ है, बे मजहूल है, इस तरह इस्तेमाल होता है। बहरहाल उसके बाद है अलिफ और हा के साथ में लिखेंगे, ये भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आह लिखना है, वहां पर अलिफ लिखेंगे, मत डालेंगे, हा लिखेंगे, आह जो बोलते हैं। लेकिन ये भी जो है इस तरह आह इह उह ज्यादा उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता है। फिर भी लिखने का तरीका मैं बताता हूं, किताबों के अंदर भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। देखिए अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर जबर डालेंगे, फिर बाद में हा लिखेंगे, आह, अलिफ लिखेंगे और जेर डालेंगे, बाजू में हा लिखेंगे, हा पर जज़म डालेंगे, इह, अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर पेश डालेंगे और हा लिखेंगे, हा पर जज़म डालेंगे, उह। एक हा लिखी जाती है, ये भी हा है और एक भी हा है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए आह, ये भी एक हा है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ये ई, उह, देखिए ये भी हा है, ये भी हा है, ये हा ऐसा भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी हा लिखा जाता है। बहरहाल ये आपको समझ में आने के लिए मैं ये लिखा हूं। उसके बाद है अलिफ को हमजा के साथ लिखना, ये भी इस्तेमाल नहीं होता है, अलिफ को हमजा के साथ नहीं लिखा जाता है। आप एक बार देखें, असल में अरबी जुबान के अंदर अलिफ पर जबर या जेर और पेश होता है, तो उसको जो है हमजा पढ़ते हैं, अलिफ नहीं पढ़ते। लेकिन ये उर्दू है, आप लोगों को समझ में आने के लिए जबर जेर पेश के साथ लिखकर मैं बता रहा हूं। असल में अरबी जुबान में गए तो आप इसको अलिफ नहीं बोल सकते, हमजा बोलेंगे। बहरहाल आपको अलिफ के साथ जोड़ने का तरीका, तो अलिफ को हमजा के साथ जोड़कर किताबों में नहीं बताया जाता, क्योंकि वहां पर कोई माना, कोई वर्ड नहीं बनता है, वो यूज नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको लिखने का तरीका आ जाए, मैं फिर भी लिख कर बता रहा हूं। ये देखिए अलिफ लिखेंगे, और अगर किसी को शौक हो अलिफ को हमजा से कैसे जोड़ते हैं, तो फिर इस तरह आप लिख लें ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। आ, हमजा इसको झटका होता है, आ, हाँ, हमजा के पढ़ने में झटका होता है। इसी तरह अगर कोई हमजा को, अलिफ को हमजा के साथ लिखना चाहते हैं, जेर के साथ में इस तरह लिख लें, फिर उसके बाद जो है इस तरह हमजा लिख लें, छोटा सा ई। हम अलिफ को हमजा के साथ जोड़ो पेश के साथ में। अगर किसी को ख्वाहिश है इस तरह लिखना चाह रहे हैं दिल की तसल्ली के लिए, तो लिख लें, अलिफ लिखें, ऊपर पेश डाल लें, और उसके बाद फिर छोटा सा हमजा लिख लें और हमजा पर जज़म डाल दें, आ ई उ। अब उस पर अलिफ को या के साथ जोड़ना, ये भी इसी तरह से है। ये देखिए अलिफ को, अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर जबर डालेंगे, आए, देखिए
या पर जज़म डालेंगे, आए, आई दो भी पढ़ लीजिए, और ई, ये देखिए अलिफ लिखेंगे, फिर बाजू में या लिखेंगे और या पर जज़म डालेंगे, ए या ई आप पढ़ लीजिए। और यहां पर अलिफ पर पेश हो उसके बाद या आए, इस तरह नहीं होता है, उई कहीं पर भी नहीं होता है। ये भी जो है क्योंकि या से पहले जेर आता है मगर या से पहले पेश नहीं आता, तो इसी तरह जैसे वाव से पहले जबर होता है, वाव से पहले पेश होता है, लेकिन वाव से पहले कहीं जेर नहीं होता, इसी तरह या से पहले जेर होता है, या से पहले जबर होता है, लेकिन या से पहले पेश कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको तसल्ली के लिए कैसे लिखते हैं एक मरतबा भी बता देते हैं आपको। अगर किसी को ख्वाहिश हो अलिफ को या के साथ, पेश के साथ कैसा लिखा जाता है, तो हम आपको बताते हैं। अलिफ लिखेंगे, अलिफ पर जबर डालेंगे, अलिफ पर पेश डालेंगे, और फिर उसके बाद या लिखेंगे, या पर आप जो है जज़म डालें, ओई, ओई इसको पढ़ेंगे। कोई ये अरबी उर्दू में यूज भी नहीं होता है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए जो मैं बताया हूं ये है ऐ, ई, ओई। और इसके बाद एक दूसरा या भी इस्तेमाल होता है, ये जो एक या है, या ये भी या है, या के बाद और एक या इस्तेमाल होती है। अब खास तौर पर जो की और बी, सी, उसकी, मेरी, तेरी में ये या यूज होती है। और जहां मजहूल पढ़ा जाता है, उसके लिए, बेटे, बेटे, उसके लिए, उसके, मेरे, तेरे में ये या यूज होती है। फिर भी एक मरतबा आपको बता देता हूं, और एक या के साथ भी ये है, या लिखे जज़म डाल दे, ऐ, या लिखे ज़ेर डाल दे, ई, या लिखें, अलिफ लिखें, पेश डाल दें, ओई। अब आप देखें, ये आपको समझने के लिए ये या जो है उर्दू में जो साउंड आता है ई का, जी, ये ई का इंग्लिश, जहां पर ई का लफ्ज उर्दू में कहीं पर भी हो, ई का जो है आवाज आई, उसकी, मेरी, तेरी जो आता है उस जगह पर ये या इस्तेमाल होता है। और जहां पर जो है ए का लफ्ज आए, उसके, मेरे, तेरे, एक लास्ट में जहां आता है तो वहां पर ये या इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपको लिखकर मैं बताया हूं। आप इसको जो है उर्दू लिखना पढ़ने का तरीका है ये, इसको आप सिंगल रूल कॉपी में पेन या पेंसिल से जो है अपने 1 से 3 मरतबा जो है इसको लिख लें, और अपने खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और आगे के वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाएं।